In the morning, we were trying to understand chapter 12. Chapter 12 is the vision of the woman and the dragon. The dragon is trying to kill or destroy the child that was born for the woman, but the child is snatched into heaven. All the plans and purposes of the dragon fails there. And after the child was taken into the heaven, the woman, God is giving eagle's wings for the woman, and woman is taken into the wilderness where God is protecting her there. The dragon is very angry there, and dragon from his mouth is sending a flood to swallow up the woman, but the earth opens its mouth and swallows all the water. So in the wilderness, God is protecting that woman. The woman is the whole people of God, both in the Old Testament and New Testament. The child is Christ himself, who was to rule over the every nations with the rod of iron. So the dragon is here trying to destroy the woman after the child was taken into heaven, and the God is protecting that woman. So that shows the women, the people of God, going through, women and her children also being targeted by the dragon, the people of God going through persecution. So dragon is not able to destroy the woman and her children. Her other children are mentioned, that is the people of God. So what is dragon doing next? Dragon is standing at a seashore. समुद्र के किनारे खड़ा है dragon. So in this chapter we see, as I titled the class, it's the unholy trinity. Trinity means what? In chapter 4 and 5 of Revelation, in chapter 4 and 5 of Revelation, we see the Holy Trinity. त्रिएक परमेश्वर का विषय हम देखते हैं. God, seven spirit, which is Holy Spirit, is one who is seated on the throne, and the Lamb. So God is being worshipped. Holy Spirit is drawing worship from the earth. पवित्र आत्मा धरती से परमेश्वर के लिए आराधना लेके आ रहा है. So we see in the chapter 4 and 5, I have already taught you, मैंने already पढ़ाया है आप लोगों को. 4 and 5 में हम ट्रिनिटी को देखते हैं. So ये स्वर्गीय सिंहासन में. अभी इधर उसका पैरडी का मतलब क्या है? पैरडी PARODY. पैरडी बोलते हैं. मिमिक्री तो मैंने बताया, मिमिक्री या मिमिकिंग. काइंड ऑफ ए कॉपी. पैरडी इज, कोई असली गाना होगा उसका पैरडी निकालते हैं ना, कुछ और शब्द इस्तेमाल करते हुए टून में गाना गाते हैं आप लोग. मेरा भाषा में तो बहुत है. तो हिंदी में एक असली गाना होगा फिल्म का, टून इस्तेमाल करते हुए कुछ और नकली गाना बनाते हैं, उसको पैरडी बोलते हैं. समझ गए? तो मैंने कुछ गीत गाया, मेरा टून सब कुछ ले लिया, फिर आप अपना शब्द इस्तेमाल करते हुए नकली गाना सेम टून का, तो सुनने में सेम लगता है पर रियली वो चीज है ही नहीं. समझ गए? डुप्लीकेट काइंड ऑफ. डुप्लीकेट कॉपी. दिखने में एक जैसा लगेगा पर क्या है? ओरिजिनल है ही नहीं. दैट इज पैरडी. पैरडी सॉन्ग, मिमिक्री. मिमिकिंग मतलब ओरिजिनल नहीं, उस जैसे ओरिजिनल है उसको इमिटेट करने के लिए कोशिश कर रहा है. तो जैसे परमेश्वर का उस सिंहासन, उसका दर्शन में पिता परमेश्वर, पुत्र जो मेमना है और सात आत्मा है जो होली स्पिरिट है. हियर ऑल्सो वी सी ए ट्रिनिटी इन द इविल पावर. उस दुष्ट शक्ति में तीन क्या है? पावर्स. जैसे ट्रिनिटी है परमेश्वर में, वैसे तीन पावर्स 13 में. ये भी एक मिमिक्री है. परमेश्वर का मिमिक्री करने के लिए
या जो ओरिजिनल है उसका नकली बनाने के लिए कोशिश किया गया है। तो उसमें कौन है हेड? ड्रैगन, जो शैतान खुद है। अभी सेकंड द बीस्ट फ्रॉम द सी, समुद्र से एक बीस्ट निकलेगा, उसका पीछे कौन है? ड्रैगन ने लेके आ रहा है। और दूसरा एक बीस्ट है धरती से आ रहा है। ये तीनों मिलाकर देयर इज ए अनहोली ट्रिनिटी which is the parody of the Holy Trinity. The dragon, beast from the sea, and the beast from the earth constitutes मतलब ये तीनों मिलाकर, constitutes ये तीनों मिलाकर बनाता है PAROD, parody of the Holy Trinity. So, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर का अधिकार है, वैसा एक अधिकार तो नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, उसका अधिकार हमेशा के लिए है। पर नकली बनाते हुए धरती पर कौन राज कर रहा है? राज कर रहा है मतलब परमेश्वर है सबके ऊपर, पर उसको जो जगह मिला है उस पे क्या है? एक नकली अधिकार बना के रखा है, ड्रैगन बीस्ट और द सेकंड, फर्स्ट बीस्ट एंड द सेकंड बीस्ट। So now we are going to look at what is the beast from the sea and what is the beast from the earth. That is chapter 13. Chapter 13 is also famous for this number 666. So many people who teaches Revelation, who reads the Revelation, focuses on this chapter 666. Who is this person? The whole life is spent on researching who will be this person. Throughout centuries, people have come up with a lot of answers. हर एक सदियों में लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं कौन है ये 66। तो कुछ लोग बोला ये पोप है, 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में रोमन कैथोलिक पोप है 666। बाद में आकर मेरे बचपन में बोल रहे थे जॉर्ज बुश है। जॉर्ज बुश सुना है? अमेरिका का प्रेसिडेंट था। मैं जब क्या 4th क्लास में 5th क्लास में गया था, जॉर्ज बुश एक अमेरिका का प्रेसिडेंट था। हाँ नहीं, वो ओबामा था, उससे भी पहले जॉर्ज बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तो वो है करके बोल रहे थे। उसके बाद ओबामा का नाम आया, उसके बाद ये फिर से रोमन कैथोलिक पोप का नाम याद है, बाद में मोदी का नाम कुछ वो कोई बोल रहे थे। तो ये बदलते रहेगा, एक सदी में ये बदलते रहेगा। कुछ लोग बोला कंप्यूटर है 666। कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ ना, कंप्यूटर जब क्या है, कंप्यूटर को जब क्या है बनाया, मतलब इन्वेंट नया जब कंप्यूटर आया, बोल रहा है ये सिस्टम है 666, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये सिस्टम कंप्यूटर है। अलग अलग प्रकार का है, हाँ अलग अलग चीजें, अजीब अजीब चीजें बोलते हैं। तो पूरा लाइफ इसके पीछे 666 के ऊपर। पर रेवलेशन किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। पूरा इसके पीछे चले गए लोग, बाकी कुछ जो मेन मैसेज है वो समझने के लिए कोशिश नहीं की। ये किताब क्यों लिखा गया है, क्या है इस किताब का मकसद, ये छोड़कर पूरा कहाँ इस 666 के पीछे पड़ गया। तो मलयालम में एक कहावत है, क्या है, एक घर में अगर चूहा घुसा, चूहा को मारने के लिए कोई पूरा घर जलाता है? नहीं, चूहा को मारने के लिए लकड़ी लेके निकलो या कुछ क्या है, जहर रखो उसके लिए। कुछ चूहा को पकड़ने का एक तरीका है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, चूहा के चक्कर में पूरा घर जलाने दो, फिर ये
चूहा को छोड़ना नहीं। कौन सा मायने रखते? घर मायने रखते। घर के अंदर चूहा घुसा मतलब ये नहीं घर जला सकते। तो वैसा है ये बात। क्या है, छोटे से एक बात के लिए पूरा किताब को क्या किया, इनकार करके रखा है। किताब किस चीज के बारे में वो भूल गए, सब लोग किस चीज के पीछे है। ये चूहा को मारना है कैसे भी, बाकी कुछ नहीं मायने रखते। यीशु मसीह का रेवलेशन हो, किसी का रेवलेशन हो, मायने रखते हैं ये 666 कौन है, ये जानकर ही बाकी काम है। ये नहीं है किताब का उद्देश्य, ये नहीं है कलीसिया के लिए, कलीसिया को प्रोत्साहन देने के लिए, ये सताव के या मुश्किल घड़ी पर यीशु मसीह कलीसिया को प्रोत्साहन देने के लिए ये किताब लिखा है। ओके, वी विल कम टू आवर मेन टेक्स्ट। निकलेगा तो नहीं? So when we come to chapter 13, it reads like this: and I saw a beast rising out of the sea. Beast from the sea. ये सी के किनारे कौन खड़ा है? पहले ही ड्रैगन उधर ही है, तो ड्रैगन ही इसको लेके आ रहा है, ड्रैगन के द्वारा ये आ रहा है। सो बीस्ट इज फ्रॉम द सी। सी क्या है करके दानियल में हमने पढ़ा है, ये दुष्ट शक्तियों का केंद्र करके विश्वास किया जाता है। ऑल द बीस्ट इन चैप्टर 7 ऑफ डैनियल राइजेस फ्रॉम द सी। इट इज द सीट ऑफ इविल पावर्स और द केओस। केओस मीन सारा जो बिगड़ा हुआ इस धरती के सिस्टम को दिखाता है। And I saw a beast rising out of the sea. इसका comes out of sea का कितना सिंह है? 10 horns. What else? 10 horns, 10 diadems या crowns, royal crowns, diadems. The earlier chapter also we saw this word, and on its head were blasphemous names. Sorry, 7 heads, 10 horns, 7 heads, just as we saw about dragon. 7 heads, horns में 10 crowns है या diadems, royal crown. On his heads were blasphemous name. हिंदी में क्या है? Seven one. निंदा के नाम। अभी ये दिखने में कैसा था? ये हॉर्न के बारे में बोला, कितना सिर है बोला, ये सारे बोला, मुकुट के बारे में। अब दिखने में कैसा था? लेपर्ड जैसे, LEO, लेपर्ड। फीट लाइक बेयर्स, रिंच जैसे पैर। और क्या है? माउथ लाइक लायन, लायंस माउथ। तो ये दिखने में लेपर्ड जैसे था, चीता जैसे। पैर कैसे था? रिंच या बालू जैसे। माउथ कैसे था?
लायन जैसे एक ही एनिमल में कितना एनिमल्स आ गया। तो ये सब कहाँ देखा है हमने? लेपर्ड, रीच, लायन, ये सब कहाँ देखा है हमने? दानियल। कंपेयर दानियल 7। अभी इसको अधिकार कहाँ से मिला? Dragon gave it his power and his throne and great authority. Dragon gave his power, अपना अधिकार। तो इस बीस्ट को अपने आप में कुछ नहीं है, दिया गया अधिकार है, दिया गया शक्ति है, समझ गए? तो ड्रैगन है इसके पीछे। So the beast does not have any power or authority in itself. The authority and power of the beast was given to it. And it is written, one of its heads seemed to have received a death blow. इसमें 7 हेड्स के बारे में बताया है। वन हेड में, एक हेड में क्या है? डेथ ब्लो। किसी ने जैसे मारा या घायल किया, चोट पहुंचाया, मरने के लिए, मरा नहीं पर बहुत एक चोट है। ये इसमें में कैसा है? वुंड कैसे? पढ़ो। But its mortal wound had been healed. तो डेथ ब्लो तो है पर mortal wound was healed. Mortal wound means मरने लायक एक क्या था? हाँ, एक चोट पहुंचा था पर it was healed, बाद में वो चंगा हो गया। एक हेड में, 7 हेड में एक हेड में चोट पहुंचा था, या उतना खतरनाक एक क्या, जैसे किसी ने उसको मार डालने के लिए मारा, वैसा चोट था। अब इसके बारे में और क्या वर्णन किया गया है? In amazement, the whole earth followed the beast. Whole earth followed the beast. पूरा धरती इसका पीछे या इसका आज्ञा मान रहे थे। Whole earth followed the beast. और क्या लिखा गया उसके बारे में? Verse 4, they worshipped the dragon, for he had given his authority to the beast, and they worshipped the beast, saying, who is like the beast, and who can fight against it? So the whole earth followed the beast and worshipped the dragon and the beast. और क्या क्या बोलकर आराधना कर रहे थे? Who is like the beast? ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। पुराना नियम में यहोवा जैसे कौन है करके बहुत सारे जगहों में देखते हैं, इसलिए मैंने बोला ये पैरडी है। परमेश्वर के लिए जो है वो छीन कर क्या है, जो नकली चीजों को दे रहा है। That is Satan's trick. Who is like the beast and who can fight against? कौन लड़ सकता है? क्योंकि लड़कर नीचे गिरा है फिर भी क्या बोल रहा है? 12 में क्या हुआ? 12 में क्या है इसका? इसको ऊपर से क्या किया है? हाँ, इसको तो सिर कुचल के नीचे डाला है, फिर भी क्या गाना हो रहा है? ये ड्रैगन और बीस्ट से कौन लड़कर क्या काम खत्म किया है? अभी थोड़ी देर ही बचा है, पर उसका आराधना कैसे हो रहा है? वो है नकली चीज है। शैतान का जो ट्रिक, चालाकी ये है। फिर भी लोग देखते हुए ऐसे दिखाई देते पूरा शक्तिशाली खड़ा है। शैतान को इतना शक्तिशाली हम क्यों समझते हैं? कि वो ऐसे दिखाता है, असली में क्या नहीं है, शक्ति है इसमें, ये नहीं कुछ नहीं है करके, पर जैसे वो दिखाता है उतना है ही नहीं। वो पहले से हार गया है, पर दिखाता है क्या है? कोई नहीं है उसको। इसलिए
ज्यादातर कई सारे मसीह लोग इसलिए सही रास्ता पे चल रहे शैतान को डरते हुए, परमेश्वर को भाई मानते हुए नहीं। कुछ गलत हो जाएगा तो शैतान घुसेगा। शैतान का डर में बहुत लोग भक्ति का जीवन जीते हैं। तो जितना वो दिखाते हैं उतना है ही नहीं। तो अपने आप के लिए क्या क्या आराधना क्या हो रहा है? हु इज लाइक द बीस्ट? कौन है इस बीस्ट जैसे? लोगों को पता नहीं, इसका सिर कुचला गया है। एंड हु कैन फाइट अगेंस्ट इट? परमेश्वर उसको इसके साथ युद्ध करके, परमेश्वर का सेना इसके साथ युद्ध करके हरा दिया है। और अगला चैप्टर में क्या है? हम जीत गए। तो ये है पैरोडी, नकली, मिमिक्री हो रहा है। परमेश्वर के लिए जो आराधना जाना चाहिए वो छीन रहा है चालाकी में। वर्स 5 में, द बीस्ट वाज गिवन ए माउथ अटरिंग haughty and blasphemous words, and it was allowed to exercise authority for 42 months. अभी ये बीस्ट के बोली कैसा था? माउथ अटरिंग मतलब बोलना। वर्स 5 में माउथ अटरिंग हॉटी मतलब घमंड के बातें। हॉटी एंड नोटी नहीं लिखना, हॉटी, ठीक है। ब्लास्फेमस मतलब निंदा वाला, परमेश्वर को निंदा करने वाली बात। घमंड, इसको क्या है? प्राइड को दिखाते हैं, घमंड को। ये क्या है? परमेश्वर के खिलाफ निंदा करने का। एंड इट वाज अलाउड टू एक्सरसाइज अथॉरिटी। कितने महीने के लिए? 42 मंथ्स। ये बराबर 3.5 साल। तो औरत के लिए भी यही टाइम निश्चय किया था। वो जो विटनेस के लिए भी, 2 विटनेस के लिए भी यही टाइम दिया गया है। तो एक ही बात, एक ही सच्चाई का अलग अलग व्यू है। It opened, verse 6, it opened its mouth to utter blasphemies against God, blaspheming his name and his dwelling, that is, those who dwell in heaven. तो परमेश्वर के खिलाफ निंदा कर रहा है, सच्चे परमेश्वर के खिलाफ। Also it was allowed to make war on the saints and to conquer them. परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए उसको अधिकार मिला, मतलब अनुमति मिला। It was given authority over every tribe and people and language and nation, and all the inhabitants of the earth will worship it. Everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of the life of the Lamb that was slaughtered. पूरे दुनिया उसका आराधना करेंगे, और परमेश्वर के लोगों को जो उसको नहीं आराधना करते उनको ये सताएगा। तो जिसका नाम मेमने का किताब में नहीं है, उन लोगों को क्या है? उन लोग इसको आराधना करेंगे, इसके पीछे हो लेंगे। Verse 9, let anyone who has an ear listen. ये कलीसियाओं के लिए बताया था, let anyone। आयत 10, if you are to be taken captive into captivity, you go. If you kill with the sword you must be killed. Here is a call for the endurance and faith of the saints. अभी क्या है ये फर्स्ट बीस्ट? क्या है, कौन है? 10 में ये लिखा गया, if you are to be taken captive into captivity you go। मतलब जो कुछ ये बीस्ट कर रहा है उसका बदला वैसे ही उसको मिल जाएगा। वो बहुत लोगों को बंदी बना रहा है, आखिर में वो कौन कैसा होगा? वो खुद बंदी हो जाएगा। समझ गए? ये बीस्ट के खिलाफ एक आवाज आ रहा है, एक भविष्यवाणी आ रहा है। क्या है? जैसे ये बीस्ट बहुत लोगों को बंदी बना रहा है, वही लिखा है वर्स 10, इफ यू आर टू बी टेकन कैप्टिव, क्या है? इनटू कैप्टिविटी यू गो। तो बंदी बनाते हुए वो खुद बंदी हो जाता है। इफ यू किल विद द स्वॉर्ड यू मस्ट बी। जो तलवार चलाता है वो तलवार से ही
जैसे यीशु मसीह ने बोला, मतलब परमेश्वर इसको न्याय करेगा, परमेश्वर का न्याय इसके ऊपर आएगा। पर परमेश्वर के लोगों के लिए क्या लिखा गया? हियर इज ए कॉल फॉर द एंड्योरेंस एंड द फेथ ऑफ द सेंट्स। तो कुछ लोग ये आयत 10 पे ऐसे बोलते हैं, ये बीस्ट के खिलाफ परमेश्वर का न्याय के बारे में बताता है, पर असली में कुछ लोग ऐसा बोलता है ये परमेश्वर के लोगों से बोल रहा है। इफ यू आर टेकन इनटू कैप्टिविटी यू गो टू कैप्टिविटी, मतलब बीस्ट अगर तुम्हें बंदी बनाएगा तो उसके साथ क्या क्या हो जाओ। समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर बोल रहा है, या ये विषन का भविष्यवाणी ये से हो रहा है, ये बीस्ट अगर तुम्हें बंदी करके ले जाए तो उनके साथ समझौता करने से भी अच्छा है क्या है, बंदी बनकर चले जाओ। पर तुम लोग क्या है, लड़ना नहीं, तलवार नहीं उठाना। किससे बोल रहा है? परमेश्वर के लोगों से। तो दो नजरिया है, कुछ लोग क्या है बोलते क्या ये बीस्ट से बोल रहा है, तुम बंदी बनाएंगे तो बंदी, तुम भी बंदी, पर पढ़ने में ऐसा नहीं लग रहा है। और दूसरा क्या है, तुम तलवार चलाएंगे तुम भी तलवार से मारा जाएगा। वो तो है, वो तो सही है, परमेश्वर उसको सही बदला देंगे, पर ये परमेश्वर के लोगों से बताते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि 9 में क्या है, लेट एनीवन हु हैज ईयर, वो परमेश्वर के लोगों के लिए क्या है, बंदी बनाना पड़े तो बंदी हो जाओ, मीन्स नो कॉम्प्रोमाइज। जो लोग समझौता कर रहे हैं उनको बंदी बनाने की जरूरत नहीं है, जो लोग समझौता नहीं कर रहे उन लोग बंदी होगा बीस्ट के द्वारा भी। दूसरा, पर तलवार नहीं उठाना, क्योंकि तलवार जो लेंगे तलवार से ही खत्म होगा। इसका मतलब क्या है, वायलेंस इस्तेमाल नहीं करना, सह लेना, परमेश्वर के नाम के प्रति सहना पड़ेगा, कई बार मर जाना भी पड़ेगा, पर तलवार खुद लड़ने के लिए नहीं जाना। ये हो सकता है ये सलाह। सो हियर इज ए कॉल फॉर द एंड्योरेंस। तो नीचे लिखा है, उसमें से साफ हो जाता है ये क्या, किस बात के बारे में, परमेश्वर के लोगों से क्या है, इट्स ए कॉल फॉर एंड्योरेंस, सहने के लिए, एंड फेथ ऑफ द सेंट्स। हिंदी में कैसे लिखा है? 10 का लास्ट लाइन, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में। तो पवित्र लोगों का धीरज के बारे में लिखा गया है। क्या है, बंदी होना है तो होना पड़ेगा, हो जाओ, समझौता करने से भी अच्छा है। और क्या है, तलवार उठाना नहीं, धीरज रखना, परमेश्वर कार्य करेगा, परमेश्वर जय देगा, परमेश्वर पर भरोसा रखने का बुलाहट है ये बीस्ट का रूल के अधीन में। अभी कौन है ये बीस्ट? ये it comes from the sea, it has 10 horns, 7 heads. So mostly people relate it to the Roman Empire is the beast, Roman emperor. तो 10 सिंह, 7 हेड, ये सब कुछ रोमन एम्परर्स को दिखाता है। 10 हेड रोमन एम्परर्स, 10 एम्परर्स ऑफ रोमन। ये पूरा रोमन एम्पायर कौन सा? ये बीस्ट क्या है? पूरा रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में मुख्य रूप में 10 राजाएं या 10 सम्राट आया था। 10 हॉर्न्स 10 एम्परर्स को दिखाता है, 10 रोमन एम्परर्स। ये बीस्ट रोमन एम्परर है, 10 हॉर्न्स 10 रोमन एम्परर्स who ruled. सेवन हेड्स कुछ लोग दिखाता है रोमन एम्पायर, रोम जो शहर 7 माउंटेन से घेरा हुआ था, 7 हिल्स, कुछ लोग ऐसे बोलता है। तो ड्रैगन का भी वही हो सकता है। डैनियल पूछ रहा था मुझे, 7-10 उसका 7 हेड्स थे, ड्रैगन का भी पूछ रहे थे आप, है ना? तो ये सेम हो सकता है 10 जो, पर ड्रैगन में ऐसा राजा को हम शैतान में के राजा के बारे में नहीं दे सकता है। पता नहीं, शायद राजाओं के बारे में होगा जो शैतान के अधीन में है। जो ड्रैगन कैसे पीछा कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों का, अपना अधिकारियों के द्वारा ही है। तो हो सकता है वो राजाओं का है, निशाना है, अधिकार का निशाना है।
तो ब्लास्फेमस नेम्स मतलब क्या है? शायद ये पहाड़ों में होने वाला मूर्ति पूजा के बारे में हो सकता है, परमेश्वर के विरुद्ध जो भी हो सकता है। अभी उसका एक हेड में, तो एक हेड इधर बोला गया है, तो कुछ लोग बोलते हैं 7 हिल्स है, पर कुछ और लोग बोलते हैं 7 अधिकारियों को ही दिखाता है। 10 हॉर्न्स और 7 हेड अधिकारियों, दोनों अधिकारियों को दिखाता है इसका परफेक्शन। जितना भी 7 और 10 क्या है? इस नंबर ऑफ परफेक्शन, मतलब ये 7 हेड और 10 सिंग इस चीज को दिखाता है। जितने भी अधिकारी लोग रोम में राज किया है, वो पूरा राज और पूरे सम्राट लोगों को दिखाता है, तो वो लेना अच्छा है। 7 हिल कुछ लोग ऐसे बोलता है। अभी उसमें से एक हेड में क्या है? गायल, डेथ ब्लो, या जैसे बहुत बड़ा खतरनाक कोई घायल हुआ करके देखते हैं। ग्रीक में जो इस्तेमाल किया हुआ शब्द क्या है? इस लाइक, लुक लाइक, स्लेन। स्लेन, ये शब्द किसको इस्तेमाल किया गया है? यीशु मसीह। ये भी इधर भी पैरोडी हो रहा है। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में वध हुआ जैसे दिखाई दिया, ये 7 हेड्स में शायद एक किसी एक एम्परर के बारे में हो सकता है, उसको भी कैसे दिखाई दिया? अब मरने जैसे घायल, तो उसको चोट तो पहुंचा पर फिर से जी उठा जैसे दिखाया गया है। तो वो कौन हो सकता है? बहुत लोग बोलते हैं ये नीरो के बारे में लिखा है। नीरो बहुत दुष्ट राजा था, वो सुसाइड किया था, पर ऐसा एक कहानी निकला, वो फिर से जी उठेगा। समझ गए? ऐसा एक विश्वास था, शायद ये लोगों को विश्वास को लेकर ये बनाया हुआ है, तो फिर से जी उठेगा करके। दूसरा एक कलिगुला करके एक एम्परर था, वो भी उसको बहुत बीमार हुआ था, पर उसका बीमारी चंगा होकर फिर से जिया। तो कुछ लोग बोल रहे उसके बारे में। जो भी हो, ऐसा एक एम्परर था ये निशान के साथ। तो ज्यादातर लोग नीरो के बारे में बोलते हैं, और आने वाला 666 भी नीरो का नंबर है। नीरो राजा के बारे में पता है? क्या क्या पता है? बहुत बड़ा सत्ता उसके समय में हुआ। पौलुस, पतरस, ये सब कुछ सब लोग इनके समय में शहीद हुआ था। तो नीरो के बारे में है करके बोलते। 666 भी उनका नंबर है। वो अगला, मतलब सेकंड बीस्ट केस में 666 आएगा। अभी लेपर्ड, इसके दिखने में लेपर्ड, बेयर, लाइन्स मत, मतलब दानियल का जितने भी जानवर है एक ही जानवर में कर दिया है। इतना क्या है? इतना भयंकर है। दानियल में 3 जानवर में बताया गया चीजें पूरा एक ही में बताया गया है। जैसे चौथा जानवर क्या था? मॉन्स्टर था, उससे भी भयानक है इसको दिखने में। सारा जानवर इसमें आ गया है। अभी ये ड्रैगन ने इसको अधिकार दिया है। तो रोम एम्पायर जो परमेश्वर के योजनाओं के खिलाफ खड़ा है, अपने आप को दुनिया का रूलर, वर्ल्ड रूलर बोलते थे। वो खुद परमेश्वर के सिंहासन के खिलाफ खड़े होते थे, परमेश्वर के लोगों को सताते। इसका पीछे कौन है? अब सारे इंसान ही है, राजा सम्राट सब, अपने आप में कुछ नहीं है। पीछे कौन है? ड्रैगन गेव हिज अथॉरिटी एंड पावर। होल अर्थ फॉलोड द, होल अर्थ मतलब उस दुनिया, ज्यादातर किसके अधीन में थे? रोमन। तो पूरा रोम के सम्राट जो बोलते हैं, वो नीरो हो जो भी हो, ऐसा करना पड़ता है। All earth followed the beast and worshipped the dragon and the beast. Worship, ये imperial cult के बारे में बताया। Shows about the imperial cult, emperor worship. तो घमंड बोलने वाला मुंह और निंदा करते हैं, क्या है? मैं हूं परमेश्वर, या परमेश्वर का पुत्र मैं हूं करके जो रोमन एम्परर्स घमंड करते थे, आराधना। पर उनका समय परमेश्वर के द्वारा क्या है? नियुक्त। ये नहीं हमेशा के लिए समय रखा है, जैसे ड्रैगन के लिए समय रखा है, इधर उनके लिए भी एक समय रखा है। समझ गए?
So this shows the Roman Empire. The beast from the sea shows Roman Empire. 10 horns and 7 heads, it shows the crown is also there. Royal crown means it shows all the emperors who ruled Roman Empire. But one emperor is emphasized. एक emperor के ऊपर जोर दिया गया है, वो नीरो हो सकता है, जिसको क्या है, मारा हुआ जैसे, या ऐसा बहुत बड़ा चोट पहुंचा हुआ जैसे दिखाई दिया, पर जी उठा करके. So many of the people believed that Nero will be resurrected. Okay? Now the beast from the sea. Earth, yeah. So दस या 11 सेकंड क्या है? ये बीस्ट फ्रॉम अर्थ क्या है? इट इज रिटन, देन आई सॉ अनदर बीस्ट, दूसरा एक जानवर या पशु, that rose out of the earth. रोज मतलब था, कौन सा? फूल नहीं, राइस का पास्ट है रोज. राइस कौन सा? चावल वाला नहीं, RISE. अर्थ, धरती से. अभी it had 2 horns like a lamb and it spoke like a dragon. Spoke like dragon. It exercises all the bara. It exercises all the authority of the first beast on its behalf, and it makes the earth and its inhabitants worship the first beast whose mortal wound had been healed. It has the तो फर्स्ट बीस्ट इसको अधिकार दिया है सेकंड बीस्ट को, उसके जगह पर उसका अधिकार के साथ लोगों के ऊपर अधिकार करने के लिए, रूल ऑन इट्स बिहाफ, उनके जगह पर.
मतलब ऐसा है, फर्स्ट बीस्ट ड्रैगन है सबके ऊपर, ड्रैगन ने अधिकार दिया है फर्स्ट बीस्ट। एफबी क्या है, फेसबुक नहीं है फर्स्ट बीस्ट। अभी इसका नीचे कौन है, सेकंड बीस्ट, जो इसके भी नीचे है। ये एक पावर स्ट्रक्चर है, समझ गए। तो टॉप में ड्रैगन है सबका कंट्रोल, उसके बाद एम्पर के नीचे अलग अलग जगहों में एम्पर का क्या होता है। फलस्तीन में एम्पर का एक व्यक्ति होता है, एम्पर के जगह पर इधर रूल करने के लिए। एक एक जगह में एक एक जगह रूल करने के लिए लोकल किंग्स होता है, लोकल अथॉरिटीज, वो है सेकंड बीस्ट, समझ गए। तो एम्परर जो चाहता है ये लोकल रूलर्स अपने अपने स्थानीय जगहों में लागू करते हैं। वो क्या है करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो उसको अधिकार दिया गया है फर्स्ट बीस्ट के जगह पर राज करने के लिए। और दूसरा उसका काम क्या है, आराधना। इट मेक्स द अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स वर्शिप द बीस्ट। लोगों को फर्स्ट बीस्ट को आराधना करने के लिए ये फोर्स करता है, मेक्स। वर्शिप द फर्स्ट बीस्ट। तो लोगों को पहला पशु को आराधना करने के लिए फोर्स करते या प्रोत्साहन देते, जो भी। तो फर्स्ट बीस्ट के बारे में क्या बोला है, तो वुंडेड, जो 7 हेड में एक वुंड, एक के ऊपर क्या था, तब वो उस बीस्ट के बारे में पर्टिकुलरली बताया गया, द वुंडेड हेड। इसको आराधना कर रहे हैं, द वुंडेड हेड। इसको आराधना करने के लिए प्रोत्साहन। तो किसी एक एम्बरर के बारे में शायद बोल रहा है। 13, इट परफॉर्म्स ग्रेट साइंस। ये क्या करता है, बड़े चिन्ह। ग्रेट साइंस, इवन मेकिंग फायर कम डाउन फ्रॉम हेवन। उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ये साइन के अंदर आता है। Fire come down from heaven to earth in the sight of all, and by the signs that it is allowed to perform on behalf of the beast. It deceives the inhabitants of the earth, telling them to make an image for the beast, and that had been wounded by the sword and yet lived. जो बीस्ट घायल हो गया तलवार से, फिर से जी उठा करके लिखा है, वो नकली है। किसका, यीशु मसीह का। पैरोडी हो रहा है, नीरो हो सकता है वो। तो उस बीस्ट का इमेज, मतलब मूर्ति बनाने के लिए tells people to make the image of the wounded but healed beast। इस बीस्ट का मूर्ति बनाने के लिए लोगों से बोलता है। 15, and it was allowed to give breath to the image of the beast, so that the image of the beast could even speak and cause those who would not worship the image of the beast to be killed। तो बीस्ट इमेज बात करना मतलब शायद क्या है,
ये इंपीरियल कल्ट में सम्राटों के लिए मंदिर बनाते थे, तो उधर क्या है, भविष्यवाणियां हो रहा है, कुछ ना कुछ साइंस एंड मिरेकल्स उधर भी होते हैं ना शैतान की ताकत से, तो उसके बारे में हो सकता है। Verse 16, also it causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or the forehead, so that no one can buy or sell who does not have the mark, that is the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let anyone with understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a person. Its number is 666. जो लोग नई आराधना करते हैं बीस्ट का, उनको मारने का अधिकार, सताने का अधिकार। मार्क ऑफ 66, ये कौन लागू कर रहे? सेकेंड बीस्ट। I want to leave. तो इतना है सेकंड बीस्ट के बारे में। तो ये सेकंड बीस्ट क्या हो सकता है? इसको इरेज करो मैं। क्या बता, उसमें जो है वो ऐसे ही लिखा है, मैंने नया कुछ नहीं बोला। अभी इसका अर्थ मैं बता, जैसे बाइबल में है वैसे मैंने लिखा है, और अर्थ कुछ नहीं बताया मैंने। वो कहाँ से आया? धरती से आया, 2 सिंह है, ड्रैगन जैसे बात किया, फर्स्ट बीस्ट से अथॉरिटी है राज करने का। पीपल को उस फर्स्ट बीस्ट को आराधना करने के लिए जबरदस्त करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। वो भी मिरेकल और चिन्ह को दिखाता है। पीपल को फर्स्ट बीस्ट का मूर्ति बनाने के लिए स्पेशली क्या है, जो स्लेन जैसे दिखाई दिया उस हेड का, जो नीरो है, हो सकता है। अभी जो लोग नई आराधना करते हैं उसको मारने के लिए, और ये सिस्टम भी कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? सेकंड बीस्ट 66 का। जो लोग समाज पर जीना है, चीजों को खरीदना है, बेचना है, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए? ये चिन्ह का जरूरत है। तो ये क्या है? ये सेकंड बीस्ट। फर्स्ट बीस्ट है रोमन एम्पायर एंड इट्स ऑल द एम्परर्स। विशेष करके नीरो के बारे में बताया गया है, जो क्या है, जिसको क्या है, वध हुआ गया जैसे दिखाई दिया है। वही ग्रीक में वही शब्द इस्तेमाल किया है, यीशु मसीह का पैरोडी जैसे। अभी दिस इज द, तो रोमन एम्परर का सिस्टम अभी हम समझना है। तो सबसे ऊपर होता है एम्परर। तो एम्परर सबसे टॉप रोम में बैठकर राज कर रहा है। अभी उस दुनिया के ज्यादातर भागों में रोमन एम्परर राज करते थे, मेडिटेरेनियन उस जगह में। तो उसके अंदर आने वाले जगह एशिया माइनर, 7 कलीसिया, जहां वो भी इसके अधीन में आता है। बहुत दुनिया के बहुत बड़ा भाग रोम के अधीन में आता है। तो एक जगह में बैठकर पूरा एम्पायर कैसे चलाता है, समझ गए? तो जैसे हमारा पार्लियामेंट में हर एक स्टेट से एमपी लोग हैं, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट। वैसे राजा का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर देखो एफेसस में एक काउंसिल होता है। काउंसिल मतलब एक कमेटी, जिसमें उस शहर का बड़े बड़े लीडर लोग, धनी लोग, और जो एम्परर का जो कल्ट होता है, इंपीरियल कल्ट का याजक लोग भी इस कमेटी का। तो एक एक शहर, एक एक जगह राजा से नियुक्त किया गया लोकल अथॉरिटीज होता है। राजा हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। पिलातुस ऐसा एक व्यक्ति था
फलस्तीन में या यरूशलेम में रोम के शासन लागू करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति है पिलातुस, जिसके अंडर यीशु मसीह को मारा गया था। तो एक एक जगह का लोकल अथॉरिटी और लोकल कम्युनिटी है ये सेकंड बीस्ट। लोकल काउंसिल्स मतलब कमिटी, ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल द सिटी। तो इस कमिटीज में कौन कौन होते थे? उधर के बड़े धनी लोग, नेता लोग, इसमें राजा अथॉरिटीज होता है, फिर याजक लोग, बड़े बड़े मंदिरों का याजक लोग, इंपीरियल कल्ट, सम्राट के लिए कोई मंदिर उस शहर में तो उसका भी बड़े याजक लोग, ये सब मिलाकर एक कमिटी, एक काउंसिल होता है। उन लोग क्या करते हैं? उस शहर में रोम के शासन क्या करता है? लागू करता है। तो एम्परर के लिए इधर कौन राज कर रहा है? ये लोकल कमिटी या लोकल अथॉरिटी, शायद एक राजा हो सकता है, गवर्नर, एक कमिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। तो इसलिए इधर बताया गया है ही गॉट द अथॉरिटी ऑफ द फर्स्ट बीस्ट टू रूल ऑन इट्स बिहाफ। तो एक एक स्थानीय जगह में राजा के लिए ये ग्रुप या एक व्यक्ति एक एक जगह में जो नियुक्त किया गया है, उन्हीं लोग शासन लागू करते हैं। तो सेकंड बीस्ट इज द लोकल अथॉरिटीज which also includes the priestly imperial cult. This includes imperial cult. इंपीरियल कल्ट का प्रीस्ट लोग भी इसमें एक भाग है। तो इसलिए बताया गया है, उसका मेमना जैसे क्या है, दिखाते हैं कैसे मेमना जैसे यीशु मसीह का पैरडी, जो असली जो क्या है स्पिरिचुअल अथॉरिटी है करके, पर बात करते समय क्या है? ड्रैगन है। तो सही जो उद्धार करता या सही जो आत्मिकता उनका है करके दिखाने के लिए तो कोशिश करते हैं। तो मुंह खोलेंगे तो क्या आ रहा है? तो नकली है, नकली आत्मिकता, पैरडी। Spirituality also is mimicked here. अभी make the people worship the first beast, तो उस जमाने का तो एक एक काउंसिल में, जगह के काउंसिल में कौन भी थे? इंपीरियल कल्ट प्रीस्ट, इंपीरियल एम्परर वर्शिप चलाने वाले याजक लोग भी इस काउंसिल, अधिकार के काउंसिल में थे। तो उन लोग क्या करते थे? एम्परर वर्शिप को प्रमोट करते थे। उस जगह में एम्परर वर्शिप फैलाने के लिए इन लोग काम करते थे। वही ये है, पहला बीस्ट को वर्शिप करने के लिए। इट परफॉर्म्स ग्रेट साइंस एंड मिरेकल्स। वो कौन है? ये याजक लोग, जैसे जादू टोना करने वाले बहुत कुछ दिखाते हैं, क्या है, दुष्ट आत्मा के ताकत के द्वारा इन मंदिर का, ये इंपीरियल कल्ट वाले और दूसरे मंदिरों का भी याजक लोग थे इस काउंसिल में। तो उन लोग भी क्या करते थे? चिन्ह चमत्कार दिखाकर लोगों का विश्वास क्या है, मतलब इंपीरियल कल्ट में निमंत्रण देते थे। टेल्स पीपल टू मेक द इमेज, स्टैच्यू बनाने के लिए या एम्परर का मूर्ति बनाने के लिए क्या करते थे? प्रोत्साहन देते थे, बताते थे। विशेष करके ये वुंडेड और हील्ड बीस्ट का, जो लोग नहीं करते हैं उसको मारने के लिए भी ऐसा नियम लागू करते थे। अभी 666 क्या है? नीरो कैसर करके जो शब्द, ये जो शब्द जो अभी ग्रीक में, पुराना जमाने में न्यूमेरिकल वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस था। मतलब एक एक नाम को क्या है, डिजिट्स में बदलता था। समझ गए? एक एक नाम के अगर एग्जाम्पल बताएंगे तो हमारा ABCD है इंग्लिश में, है ना, ABCD। तो एक एक अक्षर को नंबर दिया जाता है। समझ गए?
अभी कोई सोचो, ABCD कोई नाम है, सोचो। CAF एक नाम है समझो, तो इसका नंबर क्या है इधर? C3, A1, 6। अब इसको जोड़कर क्या नंबर बनता है? तो इस नाम का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 10 है। वैसे उस जमाने में, पुराने जमाने में ऐसे करते थे। तो नीरो कैसर का जो ग्रीक नाम हिब्रू में ट्रांसलिटरेट करते समय, हिब्रू में बदलते समय, वो सारा नंबर्स जोड़कर क्या मिलता है? तो कैसे करके मुझे पता नहीं, पर ऐसा है उसका रिसर्च, समझ गए? नीरो का नाम जब ग्रीक नाम है, नीरो कैसर करके जब लिखते समय, उसका नाम हिब्रू में बदलते समय क्या है? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है 666। तो शायद ये नीरो के लिए हो सकता है। दूसरा एक बात यह है, 7 परफेक्शन का नंबर है, होली ट्रिनिटी का नंबर है। अगर लिख सकते हैं तो परमेश्वर क्या है? 7 आत्माएं, ये सब परफेक्शन को दिखाते हैं। तो होली ट्रिनिटी अगर लिखना है तो न्यूमेरिकल में कैसे लिख सकते हैं? 7 सिर्फ यीशु मसीह का नाम, यीशुस करके जो ग्रीक का क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 888। सुपर परफेक्शन बोलते हैं, परफेक्शन का परफेक्शन से भी ज्यादा, ये है मतलब। पर ये क्या है? इनपरफेक्ट। नकली उठाने के लिए कोशिश तो करते हैं, वो परफेक्शन पर नहीं पहुंच। सारे बातों में क्या हो रहा है? नकली हो रहा है ना? ट्रिनिटी में लैम्ब जैसे दिखाई तो दे रहा है, पर मुंह खोलेंगे तो क्या है? ड्रैगन। तो हर एक बात में पैरडी हो रहा है, पर वो परफेक्शन नहीं पहुंचते, तो नकली है। ये इविल, इम्परफेक्ट, ये इंसान का भी नंबर है। 6, छठवां दिन इंसान को, 6th डे इंसान को बनाया, तो 6 स्टैंड्स फॉर ह्यूमन नंबर ऑल्सो। सो दिस इज ए मैन। उधर लिखा है वो एक इंसान का नंबर है, और नंबर है 666। तो एक है वो नीरो को दिखा सकता है, दूसरा है क्या है? इविल, इम्परफेक्ट। जो शक्ति परमेश्वर का वो नकरा क्या है? नकल उठाने के लिए कोशिश करता है, नकल करने के लिए कोशिश करता है, पर परमेश्वर जैसे कभी पहुंचे, वो एम्परर को दिखाता है ना? एम्परर भी क्या कर रहा है? अपने आप को दुनिया का राजा स्थापित करते हैं, अपने आप के प्रति आराधना खींचते हैं, लोगों को आराधना करने के लिए बोल रहा है। ये सब परमेश्वर योग्य है इन सारी चीज के लिए, चैप्टर 4-5 में। पर परमेश्वर का जगह लेकर ये पृथ्वी पर अपने आप को एक परमेश्वर बनाने के लिए ड्रैगन, फर्स्ट बीस्ट एंड सेकंड बीस्ट कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर से पर उन लोग कम है, वो है 666। जितना भी कोशिश करे परमेश्वर तक, वो परफेक्शन में इन लोग पहुंचने। तो एक बात यह है, इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन, IMPER। दूसरा है नीरो का नंबर है 666। अभी हो गया ना? अभी ये 66 क्या है करके ढूंढने का जरूरत नहीं। तो अभी आने वाले दिनों में 666 होगा, हो सकता है, क्योंकि नीरो जैसे कोई व्यक्ति आएगा, या पूरे दुनिया के परमेश्वर के लोगों के खिलाफ एक व्यक्ति खड़े हो गया, तो वो व्यक्ति भी ये सिंबलाइज करता है, उसका व्यक्ति का चिन्ह हो सकता है। पर ये कौन है करके ढूंढने का जरूरत अभी। जैसे उस जमाने में परमेश्वर के विरुद्ध ताकत खड़े होने वाले ताकत हर जमाने में थे, है ना? हर जगह में, हर स्थानीय जगहों में। इंडिया में भी एक ताकत है, दूसरा दुनिया में दूसरा होगा ताकत। समझ गए? ईरान में दूसरा है। अलग अलग जगहों में परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला शक्तियां, वो सारे क्या है? ड्रैगन और उसका बीस्ट है, सेकंड बीस्ट। हर एक जगह में ये सिस्टम हर एक जमाने में है। तो एक व्यक्ति को ढूंढ कर नहीं जाना 666 पर। उस जमाने के लिए कौन था? नीरो था। समझ गए? तो दिस इज द सेकंड बीस्ट, द कल्टिक प्रीस्ट, इंपीरियल कल्ट वाला प्रीस्ट, और जितना काउंसिल, जो काउंसिल एक स्थानीय जगहों में
अगर यीशु मसीह के समय में तो कौन है, ये सेकंड बीस्ट कौन हो सकता है? हेरोद। रोम के अधीन में कौन राज कर रहे थे? हेरोद। याजक लोगों का काउंसिल था फलस्तीन में, सनहेद्रीन बोलते हैं जिसको। यीशु मसीह को क्या है, मारने के लिए पहले कौन विचार किया? ये काउंसिल, याजक लोगों का काउंसिल था उधर, है ना। इसलिए मंदिर का याजक लोग, जिसमें हाई प्रीस्ट था, बाकी लोग था, तो यहूदी लोगों का एक काउंसिल था 70 लोगों का, सनहेद्रीन बोलते जिसको। तो एक एक जगह पर बड़े बड़े लोग, अमीर लोग और उधर के नेता लोग और मंदिर के याजक लोग सब मिलकर क्या थे, काउंसिल्स थे। तो उसमें से मुख्य रूप में कौन है? ये प्रीस्ट, ये इंपीरियल कल्ट वाला याजक। बाकी मंदिरों का याजक लोग क्या करते हैं? एम्परर का आराधना प्रोत्साहन करते हैं, नियम लागू करते हैं। और 666 ये नहीं, असली में ये भी नकली है। 7 अध्याय में परमेश्वर अपने लोगों को क्या कर रहा है? मोहर लाए। इसका मतलब ये नहीं सबका सिर पे मोहर है, ये अक्षरिक नहीं, ये आत्मिक रूप में। ये लॉयल्टी मतलब वफादारी दिखाता है। तो परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर मोहर रखा 7 में, और बाकी लोगों के ऊपर क्या आया? स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध आ रहा है ना। 7 में वही है ना, परमेश्वर अपने लोगों का अलग कर रहा है। जैसे मिस्र में लोगों को अलग किया, बाकी लोगों के ऊपर विपत्ति भेजा, इधर इन लोग क्या कर रहा है? अपने लोगों के बीस्ट को जो आराधना करते हैं उसके ऊपर। माइकल क्लास सुन रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं? नहीं, बहुत बार आप डिस्टर्ब है, मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। नहीं, ऐसे इधर उधर देखते ये वो करते समय मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। ये नहीं, आप बात किया करके, समझ गए? अब वो कर रहे, ये कर रहे, इधर मुड़ रहे, इधर मुड़ रहे, थोड़ा रेस्टलेस फील कर रहे हैं। ठीक है सब कुछ, अंदर कुछ और चल रहा है। नहीं, कई बार आपका बैठना ऐसा है, इधर कुछ करते हैं, उधर कुछ करते हैं, ठीक है। ध्यान से बाकी लोग जैसे बैठते हैं वैसे बैठने के लिए कोशिश करें, ठीक है। नहीं तो मुझे आप जानबूझकर नहीं कर रहा है, तो थोड़ा इधर मुड़ा, थोड़ा पैर ऊपर रखा, थोड़ा इधर मुड़ा, फिर पेपर फाड़ा, ये सब कुछ और है। शायद आपका जानकारी के बिना हो रहा है, ऐसे फ्लो में हो रहे होंगे, समझ गए। पर मेरे लिए क्या है, क्लास के लिए डिस्ट्रैक्शन है। तो सब लोग, सिर्फ माइकल के लिए नहीं, सबसे अच्छा कल्पेश, ऐसे बैठने से हिलता नहीं, ऐसे बैठता है। तो 666 ये भी एक तरह का क्या है, पैरोडी है। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर छाप ले रहे, बीस्ट अपने लोगों को। ये भी अक्षरिक रूप में नहीं लेना, सबको पकड़ कर क्या है माथे में, और नहीं, दिस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल मार्क। अभी बीस्ट क्या कर रहा है इस धरती पर? अब उसका मार्क जो नहीं है उसके ऊपर क्या कर रहा है? उनको सता रहा है। परमेश्वर का उल्टा है, अपने लोगों को अलग करके बाकी लोगों के ऊपर। तो असली में इन लोग सोचा है क्या है, मैं हूं वर्ल्ड रूलर, और मेरा जो आज्ञा नहीं मानेंगे उनको मैं सताऊंगा, समझ गए। पर असली में किसके ऊपर सताव आ रहा है? उनके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर का चाप पहले से ही है। और परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आ रहा है? ड्रैगन के ऊपर, बीस्ट के ऊपर और बाकी पृथ्वी के। तो ये भी एक पैरोडी है, इसलिए पहुंच नहीं पाते 6 में ही टक्कर। परमेश्वर जैसा अधिकार जताने के लिए कोशिश तो करेगा, नकल अधिकार, डुप्लीकेट स्पिरिचुअलिटी एंड पैरोडी ऑफ व्हाट गॉड इज डूइंग। पर नहीं होगा। तो असली में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को पहले ही, तो इन लोगों के नजर में क्या है, हम इन लोगों को अलग करेंगे, इनको सताएंगे, जो लोग परमेश्वर के, जो लोग एम्परर को आराधना नहीं कर रहे हैं। तो उनके नजरिए में सत्ता किसके ऊपर हो रहा है? परमेश्वर के लोगों पर। और असली में किसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ रहा है? 7 अध्याय से क्या है, पहले से 7 सील 7 ट्रम्पेट बाउल किसके ऊपर आ रहा है? दुनिया के ऊपर, जो परमेश्वर का खिलाफ है। तो इधर भी एक नकल हो रहा है। तो जो लोग एम्परर को आराधना नहीं करेंगे उनको क्या है, खरीद भी नहीं सकते। उन लोग क्या है, साधारण जो जिंदगी जी नहीं। अगर आपको बाजार में जाकर चावल खरीदना है तो क्या है, ये नहीं 666 दिखाना है। पता पहले से समाज को पता है आप एम्परर वर्शिप में शामिल होते हैं,
जैसे मैंने कलीसियाओं के बारे में बताते ट्रेड गिल्ड्स के बारे में बोला है ना, ट्रेड गिल्ड्स। अगर एक व्यक्ति अपना काम करना है तो क्या करना होता है? जैसे उसमें पार्टिसिपेट ट्रेड गिल्ड्स मतलब ट्रेड एसोसिएशंस। अगर मैं टीचर हूं तो टीचर लोगों का एक एसोसिएशन होता है, एक एक काम करने वालों को अपना अपना झुंड होता है, एसोसिएशन होता है, उनका पूजा होता है, उनका अलग अलग फेस्टिवल्स होता है। तो जो व्यक्ति वो काम कर रहा है तो वो झुंड में जुड़े रहना है और सारे मूर्ति पूजा वाले बातों में शामिल होना था। इसलिए जीना भी मुश्किल हो गया। मसीह बनने के बाद क्या है, आज के भविष्यवक्ता लोग जैसे बोलते हैं वैसा नहीं था। क्या है, तुम्हारा 10 100 हो जाएगा, 100 1000 हो जाएगा, 1000 करोड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं था उधर। जो था वो भी खाली होते थे, क्योंकि अपना काम करने के लिए भी क्या नहीं थे करने। यीशु मसीह के प्रति क्या है, भूखा भी रहना पड़ा। खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, बिजनेस नहीं कर पा रहे, कुछ भी काम करना है तो इनके साथ जुड़ना है, इनके आराधनाओं में शामिल होना पड़ रहा है। तो वो है, जो लोग एम्परर वर्शिप में शामिल होते हैं उन्हीं लोग ही अपना काम कर सकता है, अपना एक साधारण जिंदगी। नहीं तो मुश्किल है। जैसे स्मिरना के कलीसिया के, तुम बहुत गरीब, तुम्हारा गरीबी मैं जानता हूं पर तू धनी है, तो गरीबी। तो वो है ये, जो लोग इंपीरियल कल्ट में शामिल होते थे उन लोग सब कुछ कर सकते थे। जो लोग इंपीरियल में शामिल नहीं होते हैं या एम्परर के प्रति वफादार नहीं है, उन लोग का जीना मुश्किल कर दिया। जैसे आज के जमाने में इंडिया में भी मसीही लोगों को क्या है, गांव से बाहर करते हैं, कुएं से पानी नहीं देते, बहुत सारी चीजों से क्या करते हैं, मना। तो वैसे उस जमाने भी बहुत सारे बातों से क्या करते थे, उन लोगों को रोकते थे। सो दिस इज द वर्क ऑफ अनहोली ट्रिनिटी। सबके पीछे कौन है? ड्रैगन है। ड्रैगन फर्स्ट बीस्ट को अधिकार दिया है। फर्स्ट बीस्ट उसका अधिकार किसको दिया है? सेकंड बीस्ट को। तो उन लोग एक सिस्टम के रूप में पूरे दुनिया पर, तो सिर्फ ये नीरो के बारे में नहीं, हर जमाने में ये सिस्टम चल रहा है। हमारा इधर भी चल रहा है अलग अलग रूप में, समझ गए? तो ये है द अनहोली ट्रिनिटी। समझ गए? कोई डाउट? चैप्टर 13 इज ऑल्सो ओवर। नहीं, जैसे परमेश्वर में 3 व्यक्ति है, पिता पुत्र पर पवित्र आत्मा, ऐसे इन लोग भी 3 है, इसलिए बोला, और कुछ नहीं है। इसलिए मैं बोला नकली, एक 3 शक्तियां या 3 पावर्स